देखिए, दुबई को आज एक ड्रीम सिटी की तरह पेश किया जाता है। Dubai is one of the cleanest cities in the world. Dubai is probably the best place to be at right now, though. I was coming back to Dubai, it started raining, so people were like, oh, this is a sad moment. But for me, I love rain. सोशल मीडिया खोलिए, हर दूसरा रील दुबई की तारीफ करता हुआ दिखता है। हर इन्फ्लुएंसर यही बताता है कि दुबई ही तो फ्यूचर है। It's no longer the American dream, it's the Dubai dream. Everything in the West just feels godless and broken to me. Whereas over here, it's just things are just more normal. आज इंडियंस बड़ी संख्या में दुबई को टूरिस्ट हब के तौर पर विजिट कर रहे हैं। डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में दुबई जाने वाले इंडियंस की संख्या लगभग 2 गुने से बढ़ गई है। In 2024 alone, it welcomed over 18.72 million international tourists, making it the 4th most visited city globally, just behind Paris, London and Bangkok. अब देखिए, इसका रीजन भी ना साफ है। Dubai's real estate market is thriving. It has become the world capital of luxury housing. Dubai, there's no tax. They just have so much money there. It continues to see record high prices. Dubai's property market is defying the trend. Record-breaking highest rate per square foot that is selling property. They have record numbers of sales. Buyers are paying anything from 10 to hundreds of millions of dollars, breaking sales records. आज दुबई में लेविश लाइफस्टाइल है, लग्जरी है, सेफ्टी है, क्लीन स्ट्रीट्स हैं और अंधा पैसा भी है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या दुबई सच में उतना ही परफेक्ट है जितना कि दिखाया जाता है? क्योंकि जो सिटी बाहर से फ्लॉलेस दिखती हो, अंदर से भी उतनी ही फ्लॉलेस हो, ये जरूरी नहीं है। And if Dubai's dream was nothing more than an illusion ready to shatter, behind its spectacular skyscrapers, artificial islands, and the legendary Burj Khalifa, perhaps lies a reality far more fragile than we imagine. The city of superlatives, built in the heart of the desert. Honest feedback on Dubai. How do you like? सिर्फ मेजरली सच बताओ तो इस सिटी का कोई सोल नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, सिर्फ पैसे की फुकरेबाजी है। अगर किसी को पैसे की फुकरेबाजी देख के और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना है और करना है कि पैसे बहुत बड़ी चीज होते हैं, मटीरियलिस्टिक पसंद हो तो प्लीज कम टू दुबई, अदरवाइज बेकार है भैया। दुबई में हर चीज परफेक्ट इसलिए लगती है क्योंकि जो चीजें अनकंफर्टेबल हैं उन्हें जानबूझकर दिखाया ही नहीं जाता। Dubai is an attractive destination for dirty money. In fact, it's incredibly easy to launder money and gold because of their lax laws. It's also a popular place for sex tourism because no one in this place is financially stable besides the elite. आज दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पर सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। A young Ukrainian model looking to advance her career traveled to one of the world's most glamorous cities, but now she says her dream vacation turned into a nightmare. कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल लेवल पर फेल हो चुके हैं। Dubai's man-made islands were supposed to look like this: luxury, exuberance, and grandiosity. Instead, after 20 years of work and $13 billion, they make up an unimpressive scatter of sand with a few barely recognizable continents. Where did it all go wrong? From abandoned supercars to massive unfinished projects, these trends reveal a fascinating side of Dubai that few discuss. और सोशल मीडिया के बाहर रियल लाइफ में लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो दुबई छोड़कर निकलना चाहते हैं। इंडिया में किसी तरह बुलाने बहुत तकलीफ। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुबई सच में इतना परफेक्ट है तो इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों सामने आ रही है? आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिसे दुबई का सिस्टम और वहां की सत्ता दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहती? आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज दुबई की इमेज ऐसी बना दी गई है कि वो बहुत ही रिच, मॉडर्न और परफेक्ट सिटी है। लोग इसे लग्जरी, सेफ्टी और सक्सेस का सिंबल मानते हैं। लेकिन इस इमेज के पीछे की डार्क रियलिटी को समझने के लिए हमें दुबई की शुरुआत को पीछे से देखना पड़ेगा। देखिए, आज जो चमक दिखाई जाती है, असल में उसी जगह कुछ दशकों पहले हालात बिल्कुल उल्टे थे। दुबई कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर इलाका नहीं था। इनफैक्ट यहाँ खेती हो नहीं सकती थी, ना कोई उद्योग लग सकता था और ना ही पानी की प्रॉपर व्यवस्था थी। चारों ओर रेगिस्तान था। सरल शब्दों में कहें तो जीवन सिर्फ बेसिक सर्वाइवल पर टिका हुआ था। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यहाँ फार्मिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जमीन बंजर थी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोग दूसरे इलाकों पर डिपेंडेंट थे। ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई बिजनेस सिस्टम था। 1900 के आसपास दुबई की आबादी करीब 10,000 से 15,000 लोगों के बीच की थी। पूरी इकोनॉमी सिर्फ 2 कामों पर चलती थी, मछली पकड़ना और मोती निकालना। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो समुद्र से जो मिला वही खा लिया। लेकिन यहाँ एक बेसिक प्रॉब्लम थी,
पर्ल बिजनेस यानी कि मोतियों का बिजनेस किसी प्लान या स्किल पर आधारित नहीं था, बल्कि किस्मत पर डिपेंड करता था। यानी कि अगर समुद्र ने साथ दे दिया तो कमाई हो जाएगी, नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, नील बटे सन्नाटा। लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ? 1920 में जो कमजोर व्यवस्था थी ना, ये भी पूरी तरीके से टूट गई। और इसका रीजन भी था, जापान ने पर्ल मार्केट का पूरा इकोनॉमिक्स बदल कर रख दिया था। असल में दुनिया में उस समय पर्ल सिर्फ नेचुरल तरीके से मिलते थे। डाइवर समुद्र में जाते थे, ऑयस्टर्स को ढूंढते थे और किस्मत से अगर पर्ल मिला तो मिल गया। और ये जो प्रोसेस था रिस्की था, स्लो था और सप्लाई भी लिमिटेड होती थी। और दुबई और गल्फ के कई रीजन इसी नेचुरल पर्ल ट्रेड पर डिपेंड करते थे। लेकिन इसी दौरान जापान में एक व्यक्ति था, मिकीमोटो केकिची, जिसने लेट 1800s और अर्ली 1900s में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि ऑयस्टर के अंदर आर्टिफिशियली पर्ल को कैसे ग्रो करवाया जाए। कई सालों की कोशिश के बाद जापान ने फाइनली ये टेक्निक खोज निकाली और इसी से फिर कल्चर्ड पर्ल बनाए गए। इसके बाद जापान ने लार्ज स्केल पर्ल फर्म्स बना दिए। अब इससे हुआ ये कि मार्केट में अचानक से पर्ल की सप्लाई कई गुना बढ़ गई। अब इससे हुआ ये कि डिमांड तो वहीं के वहीं रही, लेकिन सप्लाई एक्सप्लोड हो गई, जिसका सीधा असर प्राइस पर पड़ा। पर्ल जो पहले लग्जरी आइटम माना जाता था, वो अब अफोर्डेबल हो गया और इससे एकदम से गल्फ रीजन का पर्ल का ट्रेड वो कोलैप्स हो गया। और इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब ये था कि दुबई की मेन इनकम सोर्स अब खत्म हो गई है। 1930s तक हालात और बिगड़ चुके थे, जॉब्स कम हो गई थी, लोग काम के लिए बाहर जाने लग गए थे। दुबई के पास कोई भी ऑल्टरनेट इंडस्ट्री नहीं थी, ना कोई बैकअप इकोनॉमी थी। पर चलिए, दुबई की उस समय की इकोनॉमी को समझने के बाद दुबई की सत्ता व्यवस्था को समझना भी जरूरी हो जाता है। दुबई को डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, ये एक शेखडम था, यानी कि यहाँ पर मोनार्की थी, जहाँ सारी की सारी पावर एक रूलिंग फैमिली के हाथ में थी। शुरुआत में दुबई आबू धाबी के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन 1833 में अल मखतूम फैमिली ने आबू धाबी से अलग होकर दुबई पर कंट्रोल ले लिया। तभी से ये फैमिली दुबई को चला रही है और इसी दौरान ब्रिटिश एम्पायर भी इस पूरे रीजन में मौजूद थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए नहीं आए थे, उनका मेन इंटरेस्ट था भारत की तरफ जाने वाले समुद्री रास्तों को सुरक्षित करना। और इसीलिए 1820 और 1853 में ब्रिटिशर्स ने लोकल रूलर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिए, जिन्हें बाद में ट्रूशियल स्टेट कहा गया। इन एग्रीमेंट्स के तहत ब्रिटिशर्स ने पायरेसी रोकने और सी रूट्स को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी ली। दुबई और आसपास के इलाके ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट थे, जहां पर जहाज थोड़ी देर के लिए रुकते थे और आगे निकल जाते थे। डेजर्ट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अंग्रेजों को यूजफुल नहीं लगी और इसी वजह से डेवलपमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, जो कि सही बात भी है। और इसी वजह से दुबई के जो हालात हैं वो दशकों तक ऐसे ही बने रहे। शिप्स आते थे, रुकते थे और चले जाते थे। दुबई खुद कुछ नहीं बनाता था और एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं करता था। और ये स्थिति 1950s तक बनी रही, लेकिन 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के रूलर बन गए। और शेख राशिद के प्लानिंग डिसीजंस को समझने के लिए 1966 का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1966 में पहली बार दुबई में कमर्शियली यूजेबल ऑयल डिस्कवर हुआ और यहीं से दुबई की दिशा कंप्लीटली बदल जाती है। दुबई के पास अंधा पैसा आने लगता है और ऐसे में कोई भी रूलर जो होगा वो आम तौर पर शॉर्ट टर्म गोल ही सोचेगा। यानी कि अचानक से पैसा आने लगा है तो भैया महल खड़े करो, लग्जरीज बढ़ाओ, जनता में वेलफेयर बांटो, रेवड़ियां बांटो और आराम से रूल करते रहो। लेकिन शेख राशिद ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसका रीजन भी है। तेल मिलने के बाद डिटेल सर्वेस में ये बात साफ हो गई कि दुबई के ऑयल रिजर्व्स बहुत सीमित हैं। आबू धाबी, सऊदी अरब और कुवैत जैसे पड़ोसी इलाकों के सामने दुबई का ऑयल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था। और यही वजह है कि आज भी दुबई की जीडीपी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 से 2% के आसपास है। बस फिर क्या था, शेख राशिद को ये बात शुरुआत में ही समझ आ गई कि ऑयल दुबई की परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं बन सकता है। मतलब ये पैसा आएगा लेकिन एक समय के बाद खत्म भी हो जाएगा। और अगर दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट रहता है तो कुछ दशकों के बाद वही पुरानी गरीबी लौट आएगी। और यहीं से दुबई ने बाकी अरब देशों के मुकाबले पहले एक अलग डायरेक्शन ले ली। जहां बाकी तेल वाले देशों ने तेल के पैसे को रॉयल लाइफस्टाइल्स, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, वहीं शेख राशिद ने ऑयल को टूल की तरह इस्तेमाल किया। 1966 के बाद जो भी ऑयल रेवेन्यू आया उसे डेलिबरेटली लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया। पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स और ट्रेड सिस्टम को प्रायोरिटी दी गई और इसी तेल के पैसे से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। You could have
इसके अलावा शेख राशिद को यह बात साफ पता थी कि अगर दुबई को आगे बढ़ना है तो उसे ट्रेड और मूवमेंट पर डिपेंडेंट होना होगा, और इसी सोच के तहत उसने दुबई क्रीक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दुबई क्रीक एक शैलो वाटर चैनल था जहां पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स नहीं आ सकते थे, और इसका साफ साफ मतलब यह था कि दुबई इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा नहीं ले सकता था। शेख राशिद ने दुबई क्रीक को गहरा और चौड़ा करने का फैसला लिया। यह कोई आसान फैसला नहीं था। उस समय कई लोगों ने इसका विरोध किया था। उन लोगों को लग रहा था कि यह डिसीजन दुबई को कर्जे में डुबो देगा, लेकिन शेख राशिद का लॉजिक क्लियर था। अगर बड़े जहाज आएंगे तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो पैसा आएगा, और इसी सोच के साथ कर्जा लेकर दुबई क्रीक को डीपन किया गया, गहरा किया गया। 1960s में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और इसके बाद शिपिंग एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। यहीं से दुबई की ट्रेड इंपॉर्टेंस पहली बार बढ़नी शुरू हो गई थी, और इस सक्सेस के बाद 1972 में पोर्ट राशिद बनाया गया। ये सिर्फ जहाज बांधने की जगह नहीं थी, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड का केंद्र था। Respite from the desert wastes behind. This is Dubai, one of the 7 sheikdoms which stretch along the coastal plain of eastern Arabia to the south of the Arabian Gulf. 2 decades ago, a town of no roads, no cars, no electricity. Today, a modern, thriving, busy city, developing and expanding at a prodigious rate. Today, trade is expanding at breakneck speed. For Dubai is virtually a free port. इसके बाद 1979 में जेबल अली पोर्ट बनाया गया, जो भी मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट माना जाता है। इन पोर्ट्स ने दुबई को ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क से जोड़ दिया, लेकिन असली चेंज सिर्फ पोर्ट से नहीं आया था। असली चेंज आया था जेबल अली फ्री जोन से। इसका मतलब था कि कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं लिया गया। नो इंपोर्ट टैक्स, नो एक्सपोर्ट टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स। फॉरेन कंपनीज को पूरी ओनरशिप दे दी गई। उस समय यह पॉलिसी बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन इसका असर साफ साफ दिखाई दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज दुबई में आने लग गई और ट्रेड तेजी से बढ़ने लग गया। इसी दौरान 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना। सत्ता की व्यवस्था को जानबूझकर सेंट्रलाइज रखा गया। आबू धाबी का रूलर प्रेसिडेंट बना और दुबई का रूलर प्राइम मिनिस्टर बना। और इसका लॉजिक सिंपल था। आबू धाबी के पास तेल था और दुबई के पास ट्रेड का सिस्टम था। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू कर दी गई, जिसे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिला। इसका मकसद था दुबई को ग्लोबल ट्रांजिट हब बनाना। नाइनटीन 1990s तक एमिरेट्स एशिया और यूरोप के बीच में फ्लाइट्स में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। यहां तक की कहानी में हमको यह बात समझ में आती है कि दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड था, लेकिन इसी पॉइंट पर दुबई को यह समझ आने लग गया था कि सिर्फ ट्रेड और लॉजिस्टिक फ्यूचर गारंटी नहीं कर सकते। यहां तक जो कहानी मैंने आपको बताई है उससे यह समझ में आता है कि दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड था, लेकिन इस पॉइंट तक दुबई को यह बात समझ में आने लग गई थी कि सिर्फ ट्रेड और लॉजिस्टिक्स फ्यूचर गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेल तो भाई लिमिटेड है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और यहीं से दुबई का फोकस सिर्फ डेवलपमेंट से हटकर इमेज और परसेप्शन बनाने पर चला जाता है। देखिए, जब दुबई में पोर्ट्स, ट्रेड्स और एयरलाइंस के जरिए पैसा आना शुरू हो गया तो असली सवाल ये नहीं रह गया कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। सवाल ये बन गया कि इस पैसे को दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो यही थी कि दुबई के पास ऐसा कुछ नहीं था जो अपने आप लोगों को उसकी ओर खींच सके। दुबई की लोकेशन एक्सट्रीम डेजर्ट में है। वहां गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि साल के कई महीनों में नॉर्मल आउटडोर लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहती। दुबई के पास ना कोई अपनी पुरानी सभ्यता थी, ना ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स थे, ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, ना आर्ट था, ना कल्चर था, ना म्यूज़िक था, ना सीन था, ना ही लिटरेचर था और ना ही कोई खुला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था। यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसके लिए लोग नेचुरली दुबई को चूज करें जाने के लिए। यहीं से दुबई एक नए फेज में कदम रखता है। अब फोकस सिटी को चलाने पर नहीं बल्कि सिटी को दिखाने पर चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था, पैसा आ रहा था, लेकिन दुबई को खुद को अट्रैक्टिव बनाना था। और इसीलिए दुबई ने खुद को एक सोसाइटी की तरह नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। दुबई को यह समझ में आ गया था कि पोर्ट्स और ट्रेड दुनिया को एक्साइट नहीं करते हैं। पोर्ट्स ज़रूरी होते हैं लेकिन इंस्पायरिंग नहीं होते। लेकिन दुबई ने फैसला अब ये लिया था कि उसे सिंबल्स बनाने होंगे, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर दुनिया ये बोले कि दुबई अलग है, खास है, पावरफुल है। इसी सोच से दुबई की रीब्रांडिंग शुरू होती है। धीरे धीरे दुबई की इमेज ड्रीम सिटी की बनाई जाने लगती है। इस फेज में ना ब्रांडिंग पे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है।
इसी सोच के तहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड्स, आर्टिफिशियल बीचेस, लग्जरी होटल्स। इनका मकसद ना लोगों की ज़रूरतें पूरी करना नहीं था, इनका मकसद केवल एक था, दुनिया को ये दिखाना कि दुबई सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे एक्सपेंसिव है। और बुर्ज खलीफा ना इसका सबसे साफ और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई क्योंकि टॉलेस्ट बिल्डिंग होना ये पावर का सिंबल माना जाता है। ये सिटी प्लानिंग नहीं, ब्रांडिंग थी, ब्रांडिंग। लेकिन इसी बिल्डिंग के नीचे प्लानिंग की सच्चाई भी दिख जाती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के बावजूद आसपास सीवेज सिस्टम था ही नहीं। शुरुआत में ह्यूमन वेस्ट को ट्रक से हैंडल किया जाता था, ट्रक से। A few years ago, a video surfaced on YouTube depicting a large number of trucks carrying the human waste of Dubai. These trucks were also carrying human waste collected from the large building, the Burj Khalifa itself. इसका मतलब साफ था, पहले दिखावा, बाद में बेसिक व्यवस्थाएं। पाम आइलैंड भी इसी मॉडल पर बने। इन्हें इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि दुबई में घरों की कमी थी, इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि लग्जरी सी फ्रंट प्रॉपर्टी अमीर लोगों को अट्रैक्ट करती है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने से ना सरकार के कंट्रोल में नई ज़मीन बनती है जहां हाई प्राइजेस रखे जाते हैं, लेकिन रहने के हिसाब से ये आइलैंड प्रैक्टिकल नहीं होते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग यहाँ पर है ही नहीं, सब कुछ कार पर डिपेंड करता है। और इससे ना एनवायरनमेंट को भारी नुकसान भी हुआ था। सी फ्लोर से सैंड निकाली गई, कोरल रीफ्स पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए, मरीन लाइफ खराब हुई। इनफैक्ट कई स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि ये आइलैंड्स धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि ये आइलैंड्स एटलांटिस की तरह डूब रहे हैं। अब देखो, सही बात तो यही है कि एनवायरनमेंट को छेड़ के आप टिक थोड़ी जाओगे। इन प्रॉब्लम्स को दुबई कभी ओपनली एडवर्टाइज करता ही नहीं। यही दुबई की स्ट्रेटेजी है, जो अच्छा दिखे केवल वही दिखाओ। दुबई का जो पूरा अर्बन डिजाइन है वो भी इसी लॉजिक पर बना हुआ है। चौड़े हाईवेज, ग्लास बिल्डिंग्स, मॉल्स, गोल्फ कोर्सेज, लेकिन वॉक करने के लिए ना ढंग से स्ट्रीट्स भी नहीं है। यहाँ कम्युनिटी स्पेसेस नहीं है, पब्लिक लाइफ लिमिटेड है। और ये सिटी ना रहने के लिए नहीं है, केवल देखने के लिए बनाई गई है, देखने के लिए। और इस इमेज को बनाए रखने के लिए बोलने पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। दुबई में सिस्टम के खिलाफ ओपनली बोलना बिल्कुल सेफ नहीं है। लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि क्रिटिसिज्म कभी भी क्राइम बन सकता है, और इसीलिए लोग खुद चुप रहना पसंद करते हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर इसी कंट्रोल का हिस्सा है। दुबई में पेड कंटेंट के लिए लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के साथ साफ मैसेज ये दिया जाता है, सिटी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया पर दुबई हमेशा परफेक्ट दिखता है। क्लीन रोड्स, लग्जरी कार्स, सेफ नाइट लाइफ। ये ना नेचुरल प्रेज नहीं है, ये कंट्रोल्ड कंटेंट है, कंट्रोल्ड कंटेंट। दुबई में होमलेसनेस ना कहीं नहीं दिखाई देती, क्योंकि होमलेस होना वहां अलाउड ही नहीं है। जॉब गई तो वीजा गया, वीजा गया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर कंट्री छोड़नी पड़ेगी। दुबई खुद को बेशक मेरिट बेस्ड सिटी दिखाता हो, लेकिन सिस्टम साफ तौर पर टियर्ड है। एमिरेती जो सिटीजन है ना, उनको बेनिफिट और प्रोटेक्शन दोनों मिलते हैं। एक्सपैट्स जो हैं वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दुबई की चमक को बना के रखता है। दुबई बाहर से मॉडर्न दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कल्चरलेस और इमोशनलेस सिटी है। और इसी मॉडल की असली कीमत वो लोग चुकाते हैं जो इस सिटी को फिजिकली खड़ा करते हैं, लेकिन जिनकी हालत इस चमक में कभी दिखाई ही नहीं देती। देखिए, दुबई की चमक जो दुनिया देखती है वो अपने आप नहीं बनी। हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर मॉल, हर होटल, हर आर्टिफिशियल आइलैंड, उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत लगी हुई है। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी मेहनत लगी हुई है, उन्हीं लोगों की हालत दुबई की मार्केटिंग में कभी दिखाई नहीं जाती। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो ड्रीम सिटी वाली जो पूरी इमेज है वो ही टूट जाएगी। और जो दुबई का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है ना, वो इस सच्चाई को खोल देता है। कैसे? दुबई में रहने वाली करीब 85 to 90% लोग नॉन नेशनल्स हैं, यानी ज़्यादातर लोग दुबई के सिटीजन्स हैं ही नहीं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर्स का है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, केन्या, इन जैसे गरीब देशों से आते हैं। और ये जो गरीब देशों से आए हुए लोग हैं, ये ही एक्चुअली दुबई की इकोनॉमी को चलाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स, होटल्स, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, डिलीवरी सर्विसेज और डोमेस्टिक वर्क,
हर सेक्टर में आपको यही लोग दिखाई देते हैं। अगर ये वर्कर सिर्फ एक हफ्ते के लिए काम बंद कर देना तो दुबई की डेली लाइफ पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। इसके बावजूद इन लोगों के साथ दुबई में बहुत ही खराब बर्ताव होता है। कई मामलों में तो हालात इंसानों जैसे हैं ही नहीं, बल्कि जानवरों से भी बदतर दिखाई देते हैं। और यही सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। जो लोग सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वही सबसे ज्यादा कमजोर बनाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? और इसका सीधा सीधा जवाब पता है क्या है? कफाला सिस्टम। ये दुबई और गल्फ रीजन में चलने वाला लेबर सिस्टम है। इस सिस्टम में वर्कर का वीजा और लीगल स्टेटस सीधे एम्प्लॉयर के कंट्रोल में दे दिया जाता है। मतलब वर्कर तब तक देश में रह सकता है जब तक उसका एम्प्लॉयर चाहे। अगर एम्प्लॉयर सैलरी ना दे, एक्स्ट्रा काम करवाए, गाली गलौज करे, अब्यूज करे, तो वर्कर के पास ना प्रैक्टिकली कोई सेफ एग्जिट है ही नहीं। जॉब छोड़ने का मतलब वीजा खत्म, वीजा खत्म होने का मतलब डिटेंशन या डिपोर्टेशन। और इसी डर की वजह से वर्कर हर तरह की हालत को सहता रहता है। इस सिस्टम में वर्कर को सिटीजन की तरह नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर पर डिपेंड करने वाले इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, या अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो एक्सप्लॉइटेशन की शुरुआत होती है ना, वो वर्कर की अपने ही देश में शुरू हो जाती है। ज्यादातर वर्कर एजेंट्स को भारी पैसा देते हैं। कई मामलों में 1 लाख से 3 लाख रुपए तक दिया जाता है, और ये पैसा लोन लेकर दिया जाता है। जब वर्कर दुबई पहुंचता है तो वो पहले दिन से कर्जे में होता है, और जब वो ऑलरेडी कर्जे में है तो ना वो जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पहले लोन चुकाना है। दुबई पहुंचने के बाद ना बहुत सारे वर्कर्स के पासपोर्ट्स रख लिए जाते हैं। ऑफिशियल रूल्स में ये गलत है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। पासपोर्ट जाने का मतलब मूवमेंट कंट्रोल। वर्कर ना कंट्री छोड़ सकता है, ना खुलकर कंप्लेन कर सकता है। काम की हालत बहुत कठोर होती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10 से 12 घंटे एक्सट्रीम गर्मी में काम करना पड़ता है। जो समर्स में टेम्परेचर होता है ना, वो 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। हीट प्रोटेक्शन के रूल्स कागजों में तो होते हैं, लेकिन साइट्स पर अक्सर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता। सैलरी भी बहुत कम होती है, और कई बार जो सैलरी प्रॉमिस की जाती है वो मिलती भी नहीं है। वेज डिले, ये तो एक आम बात है। कई वर्कर्स को महीनों तक पैसा नहीं मिलता। कंप्लेन करना रिस्की होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर कभी भी वीजा कैंसिल कर सकता है। वर्कर्स को सिटी के बाहर लेबर कैंप्स में रखा जाता है, और ये कैंप्स बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं। ओवर क्राउडेड। एक छोटे से कमरे में 8 से 12 लोग रहते हैं। टॉयलेट्स कम होते हैं, प्रिवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, और इन कैंप्स को जानबूझकर सिटी से बाहर रखा जाता है ताकि वर्कर्स बाकी की सोसाइटी से अलग रहें। ऊपर से वर्कर्स को प्रैक्टिकली गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें वैसा ही देखा जाता है। उनके पास ना चॉइस होती है, ना वॉइस होती है। वर्कर्स को यूनियन बनाने की इजाजत नहीं होती, और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये तो भाई साहब इलीगल है। स्ट्राइक करना वहां पर क्राइम माना जाता है। लीगल हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम और कांस्टेंट डर इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना देता है। डोमेस्टिक वर्कर्स की हालत तो इनसे भी ज्यादा खराब होती है। हाउसमेट्स और केयर गिवर्स ये प्राइवेट होम्स में काम करते हैं, जहां कोई निगरानी तक नहीं होती। कई केसेस में उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता, ज्यादा काम कराया जाता है, सैलरी रोक ली जाती है, और फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस तो सामने आते ही रहते हैं। और इस सब के बावजूद जस्टिस वो तो बहुत ही कम मिलता है। कई बार कंप्लेंट करने पर उल्टा विक्टिम पर ही मोरालिटी लॉज लगा दिए जाते हैं, और इसी डर की वजह से ज्यादातर केसेस दबा दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट वॉच और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने दुबई और यूएई में लेबर एक्सप्लॉयटेशन पर कई रिपोर्ट्स जारी की हैं। फोर्स लेबर, सैलरी ना देना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ ना बार बार डॉक्यूमेंट किया गया है। इसके बावजूद दुबई की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग इन रिपोर्ट्स को दबा देती है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अनुसार ना गल्फ कंट्रीज में हर साल हजारों इंडियन वर्कर्स की मौत हो जाती है। 2012 से 2018 के बीच एवरेज 10 इंडियन वर्कर्स पर डे गल्फ रीजन में मारे जा चुके हैं। और इसके बावजूद कभी भी दुबई अथॉरिटी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, क्योंकि इनके लिए सारे कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। और कोविड के समय में ना ये वाला सिस्टम और साफ दिख गया था। हजारों वर्कर्स को अचानक से जॉब से निकाल दिया गया। लेबर कैंप्स में खाने की कमी हो गई, सैलरी पेमेंट्स रुक गई, कई वर्कर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने तो मजबूरी में सुसाइड तक कर लिया। और ये सब ना एक्सीडेंट नहीं है,
ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। दुबई का इकोनॉमिक मॉडल चीप और रिप्लेसेबल लेबर पर चलता है। अगर वर्कर को प्रॉपर राइट्स मिलें, यूनियन बनाने दी जाए और फ्री मूवमेंट मिले तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो लग्जरी प्रॉफिट्स घट जाएंगे और इसीलिए राइट्स को सीमित रखा जाता है। दुबई की चमक और वर्कर्स की सफरिंग ये सीधे जुड़े हुए हैं। बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है ना, लेबर कैंप्स उतने ही छुपे हुए हैं। लग्जरी कैंप्स जितने एक्सपेंसिव है ना, उसका स्टाफ उतना ही अंडरपेड है। दुबई सक्सेस स्टोरीज तो दिखाता है लेकिन फेलियर्स को डिपोर्ट कर देता है। टूरिस्ट को स्माइलिंग स्टाफ तो दिखता है पर लेबर कैंप्स नहीं दिखते और यही वजह है कि ये इल्यूजन बना रहता है। दुबई खुद को मॉडर्न सिटी तो कहता है लेकिन लेबर सिस्टम पुराना और कठोर रखता है। एम्प्लॉयर पावरफुल है, वर्कर डिपेंडेंट है, लॉ इक्वालिटी नहीं देता है, हायरार्की देता है। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये कोई साइड इशू नहीं है, यही दुबई मॉडल की फाउंडेशन है। सिस्टम को बदला नहीं जाता, केवल पॉलिश कर दिया जाता है। दुबई इविल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। दुबई इविल इसलिए है क्योंकि वो अमीरी को बनाए रखने के लिए ना लाखों लोगों की बेसिक डिग्निटी को सेक्रीफाइस कर देता है। और यही रीजन है कि दुबई की चमक जितनी तेज दिखाई देती है उसकी नींव उतनी ही डार्क है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के माध्यम से कर सकते हैं। इनकी जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।